Hello, student. Uh, Suman sir from Kalra School, Halol, going to explain you this chapter, Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. In this lecture, we will try to understand the concept of sculpture and architecture. Okay, because this is also the part of our heritage. Is it clear? So, just try to understand it. India is world famous for its rich cultural heritage. The art of sculpture and architecture has brought a unique identity to India. Town planning of Indus culture of ancient India was greater than contemporary town planning of the world. And it is very remarkable. Sculpture means to carve the feeling of stone, wood, or on metal with hammer and sickle. Okay, so from the ancient time, India had a prominent place in the field of carving art, sculpture. Okay, with the help of hammer and sickle to uh, to carve the idol or different kinds of architecture. Okay, so let's try to understand first what is sculpture. The art of shaping figure or design with uh, uh, physical expression in around the relief professionally performed by the sculptor with the help of sickle and hammer is known as the sculpture. Okay, means सिर्फ हथौड़े और एक छोटी सी छेनी की मदद से किसी पत्थर को कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देना, उसको एक आकार देना, दैट इज कॉल्ड द स्कल्पचर. ओके, it is called the मूर्ति शास्त्र. ओके, and next is your architecture. The simple meaning of architecture means of construction, the आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी किसी चीज को बिल्डअप करना, किसी बिल्डिंग को बनाना, दैट इज कॉल्ड द आर्किटेक्चर. द वर्ड वास्तु इज यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर in Sanskrit language and it is very much renowned in this reference. Art of constructing building, house, town, well, fort, minars, temples, mosque and tomb. Tomb मतलब किसी राजाओं का या किसी का मकबरा, बराबर है, उनकी समाधि आप बोल सकते हो. दैट इज कॉल्ड द टॉम, इज कॉल्ड द आर्किटेक्चर. स्किल ऑफ आर्किटेक्चर इज सीन इन द आर्ट ऑफ हिज आर्किटेक्चर. एशियन इंडियन टाउन प्लानिंग. अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पुराने भारत की जो है टाउन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, स्पेशली द कल्चर ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. ओके, सो इंडिया हैज़ acquired expertise in the field of town planning. हमारे जैसे टाउन प्लानिंग शायद ही दुनिया में कहीं पे जो है देखने को मिलती है. Many such town have been found out using the archaeological excavation and town were divided into 3 sections. जब ऐसे बहुत सारे पुराने शहर ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, द मीनिंग ऑफ एक्सकवेशन मीन्स जमीन को खोदने के बाद में जो भी रूइन मिलते हैं, जो भी खंडर जैसे हालात में जो भी चीज़ें मिलती हैं, दैट प्रोसेस इज द एक्सकवेशन. एक्सकवेशन का मतलब होता है खुदाई करना, कहीं पे जमीन को खोदना. द टाउन वेयर डिवाइडेड इनटू 3 सेशन. जब ऐसे बहुत सारे टाउन इंडिया में ढूंढे गए तो उनको 3 पार्ट में बच्चों बांटा गया. फॉर अ रिजल्ट फोर्ट ऑफ रूलर्स, जो राजाओं के रहने की जगह हुआ करती थी. दैट हाउस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन, शहर का ऊपरी हिस्सा. एंड रेसिडेंस ऑफ द कॉमन पीपल सिचुएटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन. Fort for rulers were constructed on the upper part of the town. Upper part of the town is safe and protected with houses having 2 to 5 rooms. House on the lower part of the town are mainly constructed with handmade bricks. And interesting thing is that बच्चों ये जितने भी towns बनाए जाते थे ये सब जो है लगभग रिवर के किनारे एक ऐसी ऊंची जगह पे हुआ करते थे कि जहाँ पे फ्लड जो है असर करे
नहीं, किसी भी टाइप से फ्लड की कोई भी वहाँ पे नेगेटिव असर देखने को नहीं मिले। फ्लड का जो वाटर है वो सिटी के अंदर एंट्री ना मार दे, इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता था। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ डेवलप्ड मैनी मोर ब्यूटीफुल एंड सिस्टमेटिक towns and many other civilizations of the world from the architectural point of view. Among all of them, Harappa and Mohenjo-daro had a best town planning. तो first of all, let's talk about Mohenjo-daro. Okay, इसका मतलब actually होता है the heaps of dead people. Okay, basically this word is derived from the Sindhi word Mohenjo-daro. Okay, जो मतलब इसका, बराबर है। सिंधी में बोलते हैं एंजो पांजो, पांजो मतलब इस जो जहाँ पे भी आएगा उसका। तो यहाँ पे मृतकों का टीला का, तो जो मतलब का, like that way. In 1922, the archaeologist named Rakhaldas Banerjee and Dayaram Sahani, basically they both were railway engineer, और पंजाब में जो है लरकाना और हड़प्पा साइड में जो है ये लोग रेलवे की लाइन बिछा रहे थे। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इन लोगों को ज़मीन में से कुछ अलग अजीबो टाइप की अलग टाइप की ईंटें मिली, और जब इन्होंने उस साइड को जो है जब एक्सकवेट करना शुरू किया, खोदना शुरू किया, तो पूरा का पूरा एक दबा हुआ शहर इन लोगों को मिला। एंड लाइक दैट वे Harappa and Mohenjo-daro come into existence in the year 1922. Okay. Out remains of the huge town planning during the excavation work, which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colin Mack. इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट, ये लरकाना वही जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ था। तो नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान। Larkana, it is actually in book it is written the Larkhan, but basically it is Larkana. Larkana district, now it is in Pakistan. Of Mohenjo-daro, the heaps of the dead, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, मृतकों का टीला, हीप मतलब टीला। Construct how this town has constructed the okay, this town was very scientifically and very systematic constructed from the point view of planning. Mohenjo-daro is the best houses were built on the high point to protect from the flood and the dampness. The houses of the rich people were double stories, building, and 5 to 7 rooms, while those of the poor people single story building rooms. The town was fortified मतलब चारों तरफ किले से घिरा हुआ था। Okay, the town was fortified. The main entrance of the house opened on the side lanes of the main roads. Remain of the short house, kitchen and bathroom were found in every house. There was a proper arrangement of the door and windows to keep the house airy and वेंटिलाइट, मतलब हवा वगैरह उजास वगैरह के लिए सिस्टमेटिकली जो है इनका प्लानिंग रहता था। नेक्स्ट, रोड बहुत ही सिस्टमेटिक थे। ईच एंड एवरी रोड, जो मेन रोड होता था वो जो है एक दूसरे को एग्जैक्ट 90 डिग्री पे कट करते थे, और लगभग 9.75 वाइड यानी कि 20 से 25 फुट जो है चौड़े हुआ करते थे। वो इतने चौड़े होते थे बच्चों, 2 बैलगाड़ियाँ आराम से उसमें से पास हो जाए। फर्स्ट थिंग इज दैट। एंड सेकेंड थिंग, उसके अलावा इन रोड की खासियत ये थी, इनको इस तरह से बिल्डअप किया गया था कि जब हवा चली सुबह और शाम तो वो रोड हवा के जो आने वाले जो वेव्स है उससे ही पूरा का पूरा रोड क्लीन हो जाता था। ब्रूमिंग वगैरह करने की, झाड़ू वगैरह मारने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। ओके, तो दैट वाज द फीचर्स ऑफ रोड। और जो छोटी छोटी गलीज हुआ करती थी उन गली के रोड भी जो है मेन रोड पे ओपन होते थे, और वो जो रोड थे बराबर है वो सब एक दूसरे को एग्जैक्ट 90 डिग्री पे कट करते थे। यहाँ पे और भी इन्होंने लिखा है, वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बोथ क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल। फिर ड्रेनेज सिस्टम, अब ऐसा ड्रेनेज सिस्टम तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, इससे इतना समझ में आता है वो लोग कितने पहले से जो है हाइजीन कॉन्शियस लोग रहे होंगे, बराबर है। सफाई को लेकर उनके अंदर कितनी अवेयरनेस रही होगी। घर के अंदर जितना भी जो है
जो भी उनका सीवेज सिस्टम था, वो पूरा का पूरा सीवेज सिस्टम जो है, जो मेन सड़क पे जो नाला है, बड़ा गटर, उसके अंदर आके मिल जाता था और उसको भी पूरा का पूरा ऊपर से कवर किया जाता था ताकि किसी भी टाइप की गंदगी ना फैले, कोई बीमारी ना फैले। और वो पूरा का पूरा पानी उसको जो है सिस्टमेटिकली उस ज़माने के हिसाब से ट्रीट करके, बराबर है, उसको प्योरीफाई करके जो है कि कोई भी जो है सॉलिड जो कचरा है वो नदी में नहीं जाए, और उसको नदी उस शहर से काफ़ी दूर, बराबर है, नदी के अंदर छोड़ा जाता था ताकि शहर के अंदर कभी भी कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक ना फैले। ऐसे सिस्टम यूरोप के अंदर मेडिटेरियन सी में क्रीट करके आइलैंड है, वहीं पे ही देखने को मिली ऑल ओवर वर्ल्ड में, और कहीं पे भी देखने को मिली नहीं है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा फीचर्स है मोहनजोदारो का। एंड सेकंड वन इज द हड़प्पा, बराबर है। एट द सेम टाइम व्हेन मोहनजोदारो वाज रिसर्च्ड, ढूंढा गया उसको, बराबर, डिस्कवर्ड, तो एट द सेम टाइम हड़प्पा ऑल्सो डिस्कवर्ड इन द ईयर 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कॉलन मेक, दयाराम साहनी एंड रखालदास बनर्जी found a very ancient remain of the Indian civilization from Mothegomari in Punjab district near Harappa. The remains of the Indus Valley civilization was found in the Ropad in Himalayan region. It is near foothill of the Himalaya near Himachal Pradesh. आलमगीरपुर इन मेरठ, इट इज़ नियर हस्तिनापुर, जहाँ पे कभी किसी ज़माने में कौरव पांडव लोगों ने राज किया था। आज भी वहाँ पे अलग अलग रिमेन्स मिलते हैं। सिमिलरली कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल एट धोलका इन गुजरात, देसलपर, सिकलपर इन कच्छ, धोलावीरा, धोलावीरा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रोमिनेंट सिटी था। ये और जितने भी अभी तक दूसरे सिटी मिले हैं उन सबसे जो है बिल्कुल अलग हटकर इसकी जो है आज भी इसके ऊपर बहुत सारा वर्क और रिसर्च वर्क चल रहा है। ओके, प्राइड की बात ये है कि ऑल दीज सिटीज़ जिसका भी मैंने नाम लिया, ऑल दीज आर इन गुजरात। यू विल बी सरप्राइज, लोथल तो अपने बाजू में ही है, यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 100 किलोमीटर में भी नहीं है अपने हालोल से। The reason of Saptasindhu river is the reason of our Indian culture. The culture which developed here is known as the Indus Valley civilization. The remains were found first of all in the Harappan, and that's why it is known as the Harappan civilization. Okay, copper and stone weapons and many things were found in this region, and that is why it is known as the Copper Stone Age or Bronze Age. Town planning of the Harappan civilization was very systematic, and its granaries and forts were remarkable. People of that age were found to wearing ornaments such as remains were found. Now next, धोलावीरा बहुत ही prominent place है कच्छ में, खदीरबेट में. The huge and systematic Asian town contemporary to Harappa civilization has been found 2 kilometers away from the Dholavira village at Khadirbet in vast district of Bhachau Taluka, which is about 140 kilometers away from Bhuj. Archaeological Department of Gujarat surveyed the heap of the ruin after his officers of Archaeological Survey India had undertaken the research work in 1990. AD special task, AD means Archaeological Department of Excavation, was carried out under the guidance of Ravindra Singh Bist. Remain of Dholavira place and remain wall of the town was planned, while other color such fortified encircling town suggested strong security. This wall is made of the clay, stone and brick. पोर्टेबल वाटर वॉज अवेलेबल एज वेल, मतलब ऐसी जगह पे था जहाँ पे जो है पानी बाहर से जो है लाने की बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी। इस तरह से सेटअप किया गया था कि हर एक के घर को पानी अवेलेबल हो। तो इससे आप जान सकते हो कि कितनी जो है इन लोगों की सिस्टमेटिक प्लानिंग रही होगी। ये लोग इंजीनियरिंग में और ख़ास करके जो है सिविल इंजीनियरिंग में ये कितने मास्टर रहे होंगे वहाँ के लोग, और कितने जो है हाईली यू कैन से अवेयर इन लोगों को इन सब चीज़ों के लेकर रही होगी। ओके, नेक्स्ट इज योर लोथल। लोथल यहाँ से बहुत नज़दीक है बच्चों, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना। लोथल is situated in the Dholka taluka of Ahmedabad district. Dholka is a place between two rivers,
भोगराओ एंड साबरमती। इट इज़ 18 किलोमीटर फार अवे द वे ऑफ खंबात। किसी ज़माने में यहाँ तक दरिया हुआ करता था, धीरे धीरे जोग्राफिकल कंडीशन चेंज हुई, बराबर, और दरिया दूर जाता चला गया। उसका रीजन ये था कि नदी में से जो भी ये कीचड़ वगैरह आता है वो सब डिपॉजिट होता रहता है, तो उससे क्या होता है, ज़मीन ऊपर उठ जाती है और इससे जो है दरिया दूर चला गया। बाकी यहाँ पे एक ज़माने में दरिया हुआ करता था, एंड इट वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोर्ट ऑफ इंडिया इन एशियन टाइम। So 18 kilometer far away from the Khambat, where 3 layers of human habitat were found. The human dockyard, पूरा का पूरा एक गोदी मिलती है। गोदी मतलब जहाँ पे जो है शिप वगैरह को रखा जाता है, that place is called the गोदी, in English it is called the dockyard, was constructed into the facilitate ship in the time of high tide as town lower eastern part of the town, and it is a unique feature of Lothal. Such dockyard stores, shops, etc. बहुत बड़े बड़े यहाँ पे गोडाउन भी मिले, so that the प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अच्छा, यहाँ पे जो भी चीज़ें मिली हैं ऐसी चीज़ें जो है अरेबियन कंट्रीज़ में भी मिले, तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ से अरेबियन कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड होता था। दिस सजेस्टेड दैट द लोथल माइट बी अ रिच एंड प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज़ द मैटर ऑफ द ग्रेट प्राइड नॉट ओनली फॉर द गुजरात बट ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पैरेलल टू दिस, ये तो एशियन टाइम की बात हुई। अगर हम लोग मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें बच्चों, तो मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर मौर्यन आर्ट जो है, खास करके अशोक के टाइम पे जो अभी बनाया है, तो वो जो है प्रोमिनेंट है। आज भी उसमें से कुछ चीज़ें अभी भी जो है वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई ये नहीं आया है, कोई खंडहर नहीं बने, वो आज भी वैसे ही हैं। तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज़ द मौर्यन आर्ट में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे स्तूपा। व्हाट इज़ एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ स्तूप? तो जो भी बौद्ध साधु या भगवान बुद्ध के जो बॉडी के रिमेन पार्ट्स थे, जैसे उनके हेयर थे, नेल थे या एशेस थी, तो उनको चांदी के एक डब्बे में रखकर, बराबर, उसके ऊपर हाफ ओवल शेप में, हेमिस्फीयर शेप में जो एक समाधि टाइप में या स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था, दैट वाज नोन एज द स्तूपा। ऐसे बहुत सारे स्तूप जो है ऑल ओवर इंडिया में मिलते हैं, और उसमें से कुछ बहुत ही फेमस है, जैसे सारनाथ का धमेक स्तूप है, फिर सांची का जो है स्तूप है। तो ये बहुत सारे जो है प्लेसेस फेमस हैं। An oval shaped construction under which the remain of the Lord Buddha's body were kept stupa of Sarnath, stupa of Bhairat, stupa of Nandangarh, stupa of Devni Morni of Gujarat, of beside Chaityas, Viharas. अब Chaitya is a place where Bodh sadhu were used to prayer, एंड विहारा इज द प्लेस वेयर बोथ साधुज वेयर यूज टू लिव। तो जहाँ पे रहते थे दैट प्लेस इज नोन एज द विहार, और जहाँ पे वो लोग प्रार्थना करते थे दैट प्लेस इज नोन एज द चैत्य। ओके, ये विहार, ये भगवान बुद्ध जिस जगह पे सबसे ज़्यादा घूमे, उन्होंने विहार किया, तो उसके वजह से उस जगह का नाम बिहार पड़ा। तो इस तरह से बिहार वर्ड भी बना, ये भी आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए। द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ द prosperity of the Buddhist prosperity of the Buddhist religion and the age of sculpture and architecture. स्तूपा ऑफ सांची अभी तक का सबसे संभल के रखा हुआ जो है, अगर है तो वो सांची का स्तूप है। द स्तूपा ऑफ सांची वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। इट इज़ इन MP चिल्ड्रन, मध्य प्रदेश। इट इज़ सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश। द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ द ब्रिक. It was half of the size of the compared in the present stupa. This Buddhist stupa is a precious specimen of the art of नाउ पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये टाइम में खास देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े पत्थरों पर उस ज़माने में राजा लोग अपने जो भी लॉज हुआ करते थे, रूल्स हुआ करते थे, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन के अंदर बड़े बड़े पिलर्स में अपने जो है ये खुदवा दिया करते थे। जैसे आजकल बैनर्स वगैरह लगते हैं ना, तो ऐसे ही उस ज़माने में जो है ऐसे पिलर इंस्क्रिप्शन रखते थे, और वो हज़ारों हज़ारों सालों तक टिके रहते थे। ऐसे बहुत सारे पिलर इंस्क्रिप्शन आपको नॉर्थ इंडिया में, अम्बाला टू बिहार, आपको अलग अलग प्लेसेस में देखने को मिल जाएंगे। So stone inscription were made from the single rock
stone inscription carved out the religious order of Emperor Ashoka. आप ये बोल सकते कि उस जमाने में सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट कैंपेन अगर किसी ने की थी तो दैट एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाज डन बाय द अशोका with this method. Best specimen of the carving on stone. They were polished so well they shined. Such pillar was erected in Ambala, Meerut, Allahabad, सोमनाथ, लोरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी मीन्स आज का बनारस, पटना एंड बोधि वृक्ष नियर बोध गया इन बिहार. दे वेयर कार्व्ड इन ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन. जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं वैसे ब्राह्मी भी लिखी जाती है. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ संस्कृत ओके एंड लोकल लैंग्वेज. द स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ हैज़ बीन द बेस्ट स्पेसिमेन. अगर आप ये बाजू का पिक्चर देख पा रहे हो तो आपको ध्यान में आएगा कि इसके ऊपर जो है 4 दिशाओं में 4 शेर है, बराबर है, विच इज़ द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ. उसके नीचे देखो एक चक्र दिया हुआ है विच इज़ द सिंबल ऑफ चेंज. और उसकी चारों तरफ जो है हाथी, घोड़ा, बैल ये सब दौड़ रहे हैं, बराबर है. हाथी जो है वो स्ट्रेंथ का प्रतीक है, घोड़ा जो है क्या कहते हैं वो पावर का प्रतीक है, बराबर है. और इसी तरह से जो बैल है वो अनाज देता है. तो इस तरह से उनको अलग अलग सिंबल फॉर्म में उसमें रखा गया है. दिस चक्रा इंक्लूड द ट्रम्पेट ऑफ रिलीजन. धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं उसको. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द धर्म चक्र. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इंस्क्रिप्शन ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलॉक. द चक्र हैज़ बीन प्लेस द नेशनल फ्लैग. ओके, हमारे नेशनल एम्बलम में भी उसको जगह दी गई है. एंड रिपब्लिक इंडिया. इमेज ऑफ द 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड इन अवर नेशनल एम्बलम. दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन स्कल्पचर इन द वर्ल्ड. फिर है स्टोन इंस्क्रिप्शन. ऐसे बहुत सारे पत्थरों पर खुदाई देखने को मिलती है जो बताती है कि भाई लोगों को उस ज़माने में लॉज वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि किंग्स लोगों का बिलीव था कि लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, टिकेंगे. Stone inscriptions carved by the religious order of Emperor Ashoka are the best specimen of engraving the stone. Wooden have stone inscription arched and carved in the door, which stress religious behavior. Such stone inscription have been found from the Peshawar, Dehradun, Thane, Mumbai, Dauli, Junagadh, Jungda, Odisha, and Chennai. Such type of stone inscription have been formed in the foothill of the Girnar mountain on the way of Junagadh in Gujarat. The other than this, Palitana Jain temple of Shatrunjay mountain in Gujarat, Jain temple of Hati Singh in Ahmedabad. Such stone inscription which provide complete information of Sanskrit and Gujarati language. Okay, so this much we are clearing here, and after that the Dravid school of art we will try to understand. Okay, see you.